Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn about output and formatting in our PowerShell module 13. So in this video we are going to cover how do object become text in a console window, how the formatting system works, and the main formatting you can say things like a format wide, list, and table. There are different format we can see in the output, and how we can use a custom column in a table with the calculated value for the display. Shall use some way to convert object into a text for let me give you an example. मतलब हम सबको पता है कि PowerShell क्या है, कुछ भी जो हम डेटा डालते हैं ऑब्जेक्ट देते हैं उनको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में. कैसे करता है? लेट मी राइट अ कमांड लाइक गेट सर्विस. ये रिजल्ट है. अगर मैं इसके आगे पाइपलाइन लगा के इफ आई पुट अ पाइपलाइन एंड देन ऐड आउट डिफॉल्ट, the result is same. By default, any command is using a out default output. So whenever we put anything that convert object into the text and display on the screen, मतलब in simple words जो भी हम टाइप कर रहे हैं आउट डिफॉल्ट उसको टेक्स्ट पे टेक्स्ट के मोड में डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे. लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है. आइए स्लाइड में इसको थोड़ा सा और समझते हैं. So whichever command we use like a get process and get service, whenever you use this command, अगर हम get process यूज करें get service करें तो उसका आउटपुट जाता है out default में. out host को भेजता है डेटा, मतलब it send content to out host and out host itself a console, मतलब कंसोल ही है सीधा. तो जो भी उसके पास जाता है उसको सीधा डिस्प्ले कर देता है. लेकिन इफ यू आर यूजिंग अ फॉर्मेट एनी, आप फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो टेक्स्ट में, then the data goes to the format, and after formatting the format command send back that data to the out host. मतलब फॉर्मेट करके वो कंटेंट को वापस आउट होस्ट के पास भेज देती है और फिर आउट होस्ट उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे. थोड़ा स्लाइड से समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आइए शेल पे देखते हैं. As we just explained you, PowerShell use commands and those are binded in a pipeline. Like if I am using a get process, जैसे गेट प्रोसेस है, अगर मैं इसको आउट डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ तो बोथ आर बाइंडेड बाय a pipeline, right? The secret behind out default is out default simply provide these type of object to a out host. मतलब out default सीधा जो भी output होगा out host को provide कर देता है. Now in PowerShell, host console window and out host send object to the format subsystem, and format subsystem now formatting and create a new type of output object, that formatted output, right? Let me give you an example. I have explained this thing in a slide as well, but we just let me type another command, ps, and it shows output all processing has been done under the hood. But what is the running behind it? मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? मतलब मैंने तो सिर्फ कमांड चलाई आउटपुट आ गया, लेकिन इट्स नॉट दैट मच सिंपल. तो इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं लाइक इफ आई टाइप अ GSV कमांड. So here you can see it's pulling out only these three properties: status, name, and display. Why? This is also an important question you should keep in your mind. So why is they choosing only these column? मतलब इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, पहले और समझते हैं, कुछ और सवाल जगा लेते हैं मन में, सबके जवाब एक साथ ही मिल जाएंगे. If I'm typing like a, so what is the type name of get process? That is a system diagnostic process. This is a टाइप नेम ऑफ अ गेट प्रोसेस, जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन दे दी, हैंडलर नेम. लेकिन अगर मैं गेट प्रोसेस कमांड वैसे चलाता हूँ सिंपल, तो मुझे कितने ऑब्जेक्ट मिलते हैं आउटपुट में? इफ आई रन ओनली गेट प्रोसेस देन आई फाउंड ओनली these 5 or 6 you can say. Why? Who decide this? मतलब ऐसा क्यों होता है? ये कौन डिसाइड करता है कि ये ही आउटपुट आएगा? Yeah. To understand it more, we need to go to the C column windows where the PowerShell folder is located. So we already there. It's in a
C column Windows System 32, Windows PowerShell, and then version 1.0. So there is a file, we call it a .NET type.format, right? So let me open this for you. So in a previous command, if I type, if I want to see a type of process, I just need to use a get member command. Let me copy it from here, go back to the file, and then let's find it. ठीक है, अब इसको हमने उठा लिया जो टाइप नेम था गेट प्रोसेस का, और उसको सर्च करते हैं. So here you find it's a module. Let me press it one more time. Now you can see it's a table content, and where he is mentioned, stop it, the handles and npm. You can see here the YDAT 7, then pm, then ws, then vm. This whatever the output we have seen there, it's mentioned here, defined here. ये जो है .NET type dot format .ps1 XML फाइल है. ठीक है, इसको मैं आपको इस लोकेशन पे दिखाता हूँ. ये फाइल का जो है एक्सटेंशन टाइप है. इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है कि क्या आउटपुट क्या आउटपुट आएगा. मैं गेट सर्विस कमांड चलाऊंगा क्या आएगा, मैं गेट प्रोसेस कमांड चलाऊंगा, जो डिफॉल्ट आउटपुट है इसमें मेंशन है. लेकिन अब चलिए कि अगर एक बार प्रोसेस को छोड़ देते हैं, हम किसी और चीज़ को लेते हैं. लेट मी फाइंड ps snap in info. ठीक है, इसको सर्च करते हैं. तो आप एक डिफरेंस देखेंगे इसमें. एक मिनट वापस आता हूँ मैं. गेट प्रोसेस हम देख रहे थे तो एक टेबल कंट्रोल्स थे, लेकिन जब मैं चलाता हूँ ps snap in info, when I'm using this, when I use ps snap in info, what will happen? Yeah, it's automation ps snap in. I just want to see the ps snap in info. So all the information we'll get in a ps snap in info, which will mention here like a name, ps version. Let me type a command for you. ps snap in info. Sorry, the only the command is ps snap in, not a ps snap in info. And I want to see there's a three you can say type of properties available: name, ps version, and description. The same thing we have spotted in this file, right? The name, ps version, and description. And if you can see here, what is the type name? If I want to see the type name of this, I just need to add get member command, the system management automation ps info. Let's find this too. This is also providing you the same information, right? Let's take another example. चलिए एक example और करते हैं. Let's go back to find
the format options, like now hope you have understand how, मतलब जो ये XML फाइल है कैसे डिफाइन करती है कि आउटपुट क्या आएगा, उसका करेक्टर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी वाइडेथ क्या होगी, कौन 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 सी प्रॉपर्टी हम डिफॉल्ट लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि अगर अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है, ये तो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग हो गई, लेकिन अगर हमें थोड़ी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने तीन चीजें आज डिस्कस करनी है, कौन सी, फॉर्मेटिंग वाइड, फॉर्मेटिंग लिस्ट, फॉर्मेटिंग टेबल। तो सबसे पहले हम लेते हैं, या हमें क्या पता कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कितनी कमांड हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना। गेट कमांड हाइफन वर्ब एंड फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी भी कमांड है जो एज अ वर्ब यूज कर रही होंगी, ओह माय गॉड वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, ये वॉल्यूम, कस्टम, हैक्स, right, but today we are going to discuss only the most commonly used format command: format wide, format table, and format list. We will discuss about custom but later on, okay. And these tools are the options, sorry, I can say functions. So it's not exact command, मतलब इनको थोड़ा सा कस्टमाइज करके एज अ फंक्शन बनाया गया है, और इनका यूज बहुत स्पेसिफिक जगह पे होता है। तो जब मैं कोई स्क्रिप्ट बनाऊंगा जहाँ पे यूज करूंगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो आसान रहेगा आपके समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेट वाइड को समझते हैं, तो हेल्प लेते हैं। हेल्प जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड है पावरशेल में। हेल्प फॉर्मेट वाइड, फॉर्मेट वाइड को आप देख लीजिए, ये सिंटेक्स है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं, हम ऑटो साइज कर सकते हैं, कॉमन कॉलम मेंशन कर सकते हैं, डिस्प्ले एरर, ये सब इसके कमांड में हम सिंटेक्स और पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना, हाउ वी डिड नॉट मेंशन अबाउट द कॉलम एंड प्रॉपर्टीज नेम स्टिल शोइंग समथिंग लाइक द फॉर्मेट वाइड। अगर मैं एक कमांड चलाऊं आपको, जैसे मान लेते हैं get services and I am using a format white, it's still showing me, मतलब मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं, मतलब फिर भी फॉर्मेट वाइट अपने आप उसने दिखा दिया, दो प्रॉपर्टीज उठाई, उनका डेटा दिखा दिया। By default format white pick only the name properties. Let me show you. These are the two properties and both are pulling out the name of the services. तो format white by default name properties को ही pick करता है। इसको गेट सर्विस में देख लिया, एक काम करते हैं गेट प्रोसेस में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक क्या पुल करके लाए, ओनली नेम प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ डिस्प्ले नेम हो सकता है, कुछ टाइप नेम हो सकता है, बट जो भी नेम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी ना उन्हीं को फॉर्मेट वाइड जो है कमांड आपको पुल करेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे को वो प्रॉपर्टीज चाहिए जिनमें नेम हो और मैं देखना चाहता हूँ, तो लेट मी चूज अ नेम हाइफन चूज अ ऑटो साइज, ओके, or we can use, suppose I want to see only display name property, there's a no property with a display name, or I am typing something wrong. Let's see the same thing in a get service. Oh, there's no property with a display name, so there's a two property with the display name and you can see the data. So why it's not showing here anything like which is this, because we already mentioned which we need a display name, right? So now I want to see the properties which started with the name, not with the display name. So I am typing name. There's two properties same, the starting with the name. Can you see the difference between the name and the display name? Yeah, there is slightly difference, right? Or I can say the output is completely changed. It's a ally John router service. And if I go up and see with the name,
it's AG router, right? There is a difference between name and a display name. बिकॉज नेम ना कोड में बहुत जगह यूज होता है, उसके बीच में स्पेस नहीं होता, उसको काफ़ी जगह मतलब पास करा जाता है, तो नेम जनरली ऐसे ही होते हैं एजी राउटर जो क्लियर नहीं होते, लेकिन डिस्प्ले नेम बिल्कुल क्लियर होते हैं क्योंकि वो यूज़र इंटरफेस में काम आते हैं, आपको दिखते हैं, तो उसके इसलिए उसको डिस्प्ले नेम कहा जाता है। चलिए, ये हो गई दो प्रॉपर्टीज नेम और डिस्प्ले नेम का डिफरेंस। लेकिन अब मेरे को जो नेम है, मैं बोलता हूँ कि मेरे को ना इसको थोड़ा ऑटो साइज भी लगा के देखना है, ये यार ये बहुत स्पेस ले रहा है। सी है, स्पेस कम हो गया, तीन प्रॉपर्टीज आ गई। अब आते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मेरे को चाहिए कॉलम 4 चाहिए मेरे को, मतलब ये मेरे को लग रहा है कि और आ सकते हैं लेकिन इसमें जगह नहीं है, तो मैं 4 कॉलम मेंशन कर देता हूँ। 4 आ गए। सो आप देख रहे हैं कि कैसे आप फॉर्मेट वाइट के साथ पैरामीटर्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले ले सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कमांड, इट्स फॉर्मेट लिस्ट। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हेल्प सेक्शन में जाएंगे और फॉर्मेट लिस्ट लेंगे। तो ये इनके सारे पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंट मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमेशा कॉमन मिलते हैं जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह। लेकिन लिस्ट में क्या चीज ऐड हो जाती है, व्हाट इज अ मेन थिंग ऐड इन अ लिस्ट। चलिए मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। अगर जैसे मान लो किसी कमांड में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक गेट सर्विस, देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, सर्विस, ओके, देन I want to see on a particular properties, not all. Like, let me example format list. Yeah, you can always use alias. You don't need to write a format list command always. मतलब ये FL, FW ये इनके alias होते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा फॉर्मेट लिस्ट लिखो या फॉर्मेट वाइड लिखो, इससे क्या होता है स्क्रिप्ट भी छोटी होती है, आप कहीं स्क्रिप्ट में यूज करते हो तो काफी कम करेक्टर्स में काम हो जाता है। चलिए, अब मानते हैं इसमें मेरे को चाहिए सर्विसेज का क्या स्टेटस चाहिए। ठीक है, मुझे उनका डिस्प्ले डिस्प्ले नेम भी लिखो भाई, डिस्प्ले नेम भी चाहिए, मुझे उनका नेम भी चाहिए। ठीक है, मुझे ये तीन चीज़ें चाहिए और नहीं चाहिए। तो जितनी भी सर्विसेज हैं उनका स्टेटस, विंडोज अपडेट, डिस्प्ले नेम क्या है और नेम क्या है, वो सब आ गया। लेकिन यार ये कुछ ना हेल्पफुल नहीं लग रहा, मतलब आई एम नॉट थिंक, आई डू नॉट बिलीव इट गोना हेल्प मी एट आउट, मतलब इस तरह का डिस्प्ले मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लग रहा। तो अगर एक क्वेश्चन और आता है, अगर मेरे को सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, मेरे को ये सिर्फ नहीं देखनी, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ स्टार। ठीक है, स्टार क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज इज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर, मतलब इसको मैंने यूज किया तो जितनी भी सर्विस के अंदर गेट सर्विस के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी सारी लिस्ट आउट हो जाएंगी। देख रहे हो आप? ठीक है, so you can see how this wildcard character works. Let's go back to the help section. I want to show you something more, and फॉर्मेट लिस्ट में जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर है ग्रुप बाय का, ये भी बहुत सॉर्टिंग में बहुत काम आता है। सपोज कि मेरे को जैसे सर्विसेज हैं काफ़ी सारी, लेकिन उनको ग्रुप में करना है, मेरे को जैसे रनिंग अलग चाहिए, स्टॉप्ड अलग चाहिए, तो मैं क्या कैसे सॉर्ट करूंगा उनको, मैं ग्रुप बाय के थ्रू भी सॉर्ट कर सकता हूँ। वैसे तो और भी तरीके हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है। सपोज मैंने ये स्टेटस चलाया कमांड, ठीक है, एंड आई यूजिंग ग्रुप बाय एंड आई एम यूजिंग स्टेटस।
अब आप देख रहे हो कैसे ये ग्रुपिंग हो गई है। स्टेटस ग्रुप है, फिर ये 2 सर्विसेज आ गई, ये रनिंग में इसमें आ गई, स्टॉप थी ये 3 आ गई। तो इस तरह से काम करता है ये। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सपोज कि मेरे को जैसे ये आउटपुट है पूरा, अगर ये मैंने इसे ग्रुप बाई में इसको देख लिया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं एक और पाइपलाइन लगाऊं। सपोज मैं इस कमांड के अंदर एक चीज और करता हूँ, मैं सॉर्टिंग भी करता हूँ। ठीक है, लेट मी टाइप हियर अ पाइपलाइन यूजिंग सॉर्ट बाय स्टेटस से ही करते हैं। ठीक है, status and then using by group by status too। तो अब आप देख रहे हो, लेट मी स्क्रॉल इट अप। ये सबसे पहले स्टॉप्ड का आया, इसके अंदर चलिए स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। ये सारी स्टॉप्ड हैं। हाँ, ये देखिए जैसे रनिंग शुरू हुई। हम्म, ये रनिंग का भी आ गया। तो पहले हमने सॉर्ट किया, फिर हमने फॉर्मेट उसमें गए और इसको स्टेटस से हमने इसको ग्रुप बाय सॉर्ट किया। ठीक है, तो ये थी फॉर्मेट लिस्ट। एक तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मेट कमांड है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट टेबल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एज कम्पेयर टू फॉर्मेट लिस्ट और फॉर्मेट वाइड। हाँ, मतलब आप सब काम कर सकते हो, सबका अपना पर्पज़ है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा यूज़ होती हैं। चलिए, अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट टेबल को, जो काफ़ी यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम हेल्प सेक्शन देख लें तो कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर ये फॉर्मेट टेबल है, फिर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ऑटो साइज भी है। और चलिए चला के ही देखते हैं ना कमांड, है ना, देखी जाएगी। अब मैंने गया गेट सर्विस में एंड आई जस्ट टाइप्ड फॉर्मेट, नहीं सिर्फ ft लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। आ गया। इन्होंने 3 प्रॉपर्टीज कौन सी उठाई डिफॉल्ट, स्टेटस, नेम एंड डिस्प्ले। ठीक है, मान लो मुझे स्टेटस और नेम चाहिए, मुझे फॉर्मेट टेबल करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ स्टेटस कॉमा नेम, डिस्प्ले नेम मेरे को नहीं चाहिए। स्टॉप्ड आ गया, स्टेटस आ गया और डिस्प्ले नेम आ गया। ठीक है, और अगर मान लो कभी कभी, जैसे तो बाय डिफॉल्ट ये काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन सम टाइम ये बहुत ओवर साइज भी आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कमांड में, तो आप ऑटो साइज भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज इफ आई एम यूजिंग नेम फर्स्ट एंड देन स्टेटस, और अगर मैं यहाँ पे अगर ऑटो साइज यूज़ कर लूँ ना, तो ये तो भी 2 प्रॉपर्टीज ही हैं, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें आप ऑटो साइज यूज़ करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें स्पेस को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं लोग, मतलब पावर शेल। अब देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इस कमांड से। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर्मेट टेबल की, तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ कवर करता है। स्टार दबाएंगे तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की फॉर्म में आ रही हैं। पहले जब हम लिस्ट यूज़ करते थे तो लिस्ट की फॉर्म में आते थे। डिफरेंस समझ रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है कि कैसे आपको आउटपुट चाहिए। अगर आपको टेबल की फॉर्मेट में चाहिए, आपको फॉर्मेट टेबल यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट की फॉर्मेट में चाहिए तो लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक काम और करते हैं।
एक रैप कमांड भी लगा के देखते हैं। ठीक है, हाइफन, ये भी इसका पैरामीटर है। मतलब काफ़ी सारे ऑलरेडी जो हैं फॉर्मेट काफ़ी डिफाइंड है इसका, तो किसी और कमांड के साथ हम यूज़ करते हैं इसको। अगर मान लो मैं रैप हटाता हूँ तो ये ऐसा आउटपुट दिख रहा है, और अगर मैं रैप लगा देता हूँ, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बट सम टाइम इट विल गिव यू डिफरेंस। मतलब ये मेरे को लगता है काफ़ी लेटेस्ट पावर शेल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो पुराने पावर शेल के इश्यूज थे जहाँ पे स्पेस का इशू आता था जैसे शुरू हुआ था, तो काफ़ी हद तक कवर कर दिया है, तो अब वो इश्यूज नहीं आते। तो चलिए इसको रैप को और ऑटो साइज को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहीं आप यूज़ कर रहे हो, आपको डिस्प्ले में मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा हो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू में, तो आप रैप और नेम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें ग्रुप बाय स्टेटस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्मेट टेबल में भी हम ग्रुप बाय स्टेटस को यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मेट टेबल कमांड चलाने से पहले आप अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आपको या कुछ भी करना है आपको, तो फॉर्मेट कमांड बिल्कुल आखिरी में यूज होगी। आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, स्क्रिप्ट लगानी है, कुछ भी करना है, इन फॉर्मेट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो लास्ट में ही यूज होगी। मैं उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट टेबल, डिस्प्ले नेम, ग्रुप बाय स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस है स्टॉप्ड का। तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले सॉर्ट कर दी, जितनी सर्विस स्टॉप थी वो आ गई, और जितनी सर्विस रनिंग है फिर वो नीचे आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं पहले स्टॉप क्यों लेता है, स्टार्ट क्यों लेता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि ये उसकी जो बाइनरीज वैल्यू उठाता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो स्टॉप जनरली 0 होती है तो उनको पिक करता है, और 1 रनिंग होती है तो उनको बाद में पिक करता है। ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल है इसका पावरशेल का, जो ये उठाता है। अगर मान लो ये सब आउटपुट मेरे को स्क्रीन पे नहीं चाहिए, सिर्फ एक केस में, जब आपको आउटपुट, या मैं कहूँ कि कोई आउट कमांड यूज कर रहे हो, आउट फाइल, आउट प्रिंट, आउट डिफॉल्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू आउट, देन ओनली यू कैन यूज दैट कमांड आफ्टर द फॉर्मेट। समझ रहे हो आप? आपको अगर आउट कमांड को यूज करनी है तो ही उसको फॉर्मेटिंग के बाद यूज करोगे, अदरवाइज कोई भी कमांड है उसको फॉर्मेट कमांड से पहले ही यूज करना है आपको, क्योंकि जो भी आउटपुट होगा उसी को तो फॉर्मेट करेगा। आपका जो भी डेटा कंसोलिडेट होएगा, आपको जितनी कंडीशन लगानी है, पैरामीटर लगाने हैं या एक्सप्रेशन लगाने हैं, या कुछ भी अगर पाइपलाइन में लगाना है, तो फॉर्मेट बिल्कुल एंड में आएगा पाइपलाइन के। ठीक है, चलिए अब मैं काम करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, सर्विस डॉट टी। ठीक है, अगर मेरे को देखनी है फाइल तो कैसे देखेंगे, सी द आउटपुट इज सेव्ड इन दिस सर्विस फाइल, बिल्कुल सॉर्टिंग की तरह। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, लेट्स डू एन एग्जांपल विद द प्रोसेस। ठीक है, इफ आई टाइप अ प्रोसेस कमांड, ठीक है, अगर मेरे को इसमें फॉर्मेटिंग लगानी है, ठीक है, मैं लगा देता हूँ नेम कॉमा आईडी, और क्या लगाएं, वीएम पीएम, या लेट्स सी दिस। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। तो जो चार प्रॉपर्टीज मैंने चाहिए थी मुझे वो आ गई, पावरशेल फॉर्मेट, नेम, आईडी, वीएम। अब हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है ये तो आ गया, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ रैप कमांड लगा सकते हैं, ऑटो साइज कर सकते हैं, इसकी यूटिलाइजेशन इतना रह नहीं गया है। लेकिन इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे हम, सॉर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, आप ये सोच रहे हो कि वाई वी नीड टू डू अ सॉर्ट इन दिस केस। लेट मी गिव एग्जांपल, आई वांट टू सॉर्ट दिस बाय अ वीएम, देन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसकी वर्चुअल मेमोरी ज़्यादा हो, या वो पहले आए और जिसकी कम हो वो बाद में आए, तो उसको हमने ऐसे सॉर्टिंग में लगा दिया।
तो आप देख रहे हो, हाँ, ओ, इनकी वर्चुअल मेमोरी, हाँ, जिसकी ज़्यादा है वो टॉप पे है और जिसकी कम है वो सबसे लास्ट में है। ऐसे आप असेंडिंग में लगा सकते हो। ऐसे आप गेट मेंबर में जाके आप सबसे पहले तो इसका टाइप देखते हैं, चलिए ठीक है। PS पाइपलाइन सी, दिस इज द टाइप नेम। कहाँ पे टाइप नेम, ये रहा, सिस्टम डायग्नोस्टिक प्रोसेस। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सेम ये भी जैसे सर्विस कमांड है वैसे ही है, ये सारी डिफाइंड है उस XML फाइल में जिसको हमने देखा था, सेम दैट XML फाइल वी हैव सीन अर्लियर, बट व्हेन वी इट इज स्टिल अ प्रोसेस ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है इसका टाइप नेम जो है इसका प्रोसेस ऑब्जेक्ट कह सकते हो, मतलब जो गेट प्रोसेस कमांड को यूज करता है उनको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको और सिंपल करके समझते हैं। व्हेन आई यूज अ पाइपलाइन, ठीक है, अभी एक कमांड है PS, ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग सॉर्ट, ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग VM, नाउ आई एम यूजिंग descending, DESC, ठीक है। if I am type here a get member, what will I get? अगर मैं यहाँ पे गेट मेंबर करता हूँ तो मुझे कौन सा प्रोसेस मिलता है, सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ट्राई और करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मेट टेबल और लगा देता हूँ, ठीक है, और नेम ID VM PM let's see auto size and then get member, ठीक है, यहाँ मैंने लगाया GM। अब आप देख रहे हो कि ये चेंज हो गया, फॉर्मेट टेबल का जो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है या पीछे जो उसकी क्लासेस हैं वो डिस्प्ले हो गई। अब अगर जो कमांड या पैरामीटर यूज करेंगे तो वो किसकी यूज करी जाएगी, फॉर्मेट टेबल की। तो आप समझ गए कि जैसे कोई डिफरेंट कमांड आती है और उसका कुछ अपना भी ऑब्जेक्ट टाइप होता है तो वो क्या यूज करता है, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ, एक दो एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। लेट मी टाइप अ कमांड एंड लेट मी यूज अ सॉर्ट स्टेटस, इसको हम स्टेटस से सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सर्विसेज को ले लेते हैं, GSV पाइपलाइन सॉर्ट स्टेटस, देन फॉर्मेट टेबल, then user display name, sorted by group by, then status, and then I save this in a out file, c:/service dot txt। हमें पता आउटपुट क्या होगा, चलिए नहीं देखते फाइल, ठीक है। Now only outfile command know how to deal with the format table in applicable in a outfile, outhost and outprint। मतलब आप फॉर्मेट कमांड के बाद सिर्फ आउट फाइल ही यूज कर सकते हो और सिर्फ आउट फाइल कमांड को ही पता है कि कैसे फॉर्मेट टेबल से डेटा निकालना है, और ये सिर्फ आउट फाइल नहीं, आउट होस्ट और आउटप्रिंट कमांड पे भी एप्लीकेबल है। फॉर्मेट कमांड लास्ट में यूज होती है और उससे भी लास्ट में यूज होती है आउट फाइल कमांड, ठीक है। और बाकी जितनी कैलकुलेशन आपको करनी है वो सारी फॉर्मेट से पहले या ही करनी है, ठीक है। चलिए ये चीज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट गो द सम WMI ऑब्जेक्ट, ठीक है, WMI ऑब्जेक्ट करते हैं, get WMI when 32 which object, let choose a logical disk, okay, it's a device ID C, drive type 3 and some free space size and volume name is window, one in a window, one is a blank, ठीक है। and I want to filter out, so let me apply a filter,
और फिल्टर में क्या लगाते हैं, वॉल्यूम नेम लगा के देखते हैं। वॉल्यूम नेम इज इक्वल टू विंडोज, राइट? No, it didn't work. Yeah, because it's not work with the volume name. Why? I will tell you earlier कि ये जो है, आपको अगर इसको फिल्टर आउट करना है और तो आप इसमें आप ले सकते हो कि जो यूनिक हो, या फिर ये कैसे, नहीं यूनिक नहीं, मेरा कहने का मतलब है आप इसको वहां पे यूज कर सकते हो। सपोज जैसे ड्राइव टाइप है, जनरली ये टाइप सेक्शन के साथ ही काम आता है कि किस तरह का आपका वॉल्यूम है, उसी में आप यूज कर सकते हो। लेट मी फिल्टर आउट लाइक अ ड्राइव टाइप। तो आप देख रहे हो कि ड्राइव टाइप दोनों का 3 है, फिल्टर आउट होकर आपको डेटा दोनों का ही मिल गया। इसमें एक चीज और हम करते हैं, हम सपोज हम करते हैं कि हमें अब पाइपलाइन लगाते हैं और सिलेक्ट करते हैं डिवाइस आईडी कॉमा फ्री स्पेस, यही है ना हमारे प्रॉपर्टीज और साइज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो 3 प्रॉपर्टीज हमने चूज करी थी, तो ये फिल्टर आउट किया ड्राइव टाइप 3 से और उनका डेटा हमें दोनों का दे दिया। लेकिन यार ये डेटा फिर भी ना कुछ काम का नहीं लग रहा है। स्टिल यू कैन सी दिस इज नॉट अ हेल्पफुल एट ऑल, मतलब ये कितने बड़े नंबर्स हैं, आई माइट बी इन अ किलोबाइट और समथिंग, बट आई वांट टू सी दिस डेटा इन अ बाइट और समथिंग लाइक दैट। तो पहले इसको फॉर्मेट करके देख लेते हैं। फॉर्मेट किया, सिलेक्ट किया, दोनों में डेटा सिमिलर ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो नंबर्स हैं मेरे को यार एमबी में अगर जीबी में चाहिए, इफ आई वांट टू सी देम इन अ एमबी इन अ जीबी, व्हाट वी कैन डू, मस्ट बी इज लुकिंग लाइक इन अ किलोबाइट्स, so the command will be remain same. No, it's not remain same, we need to change a lot. So let's go to the choose a format device. Let me choose a device id and then at the rate curly bracket, and I'm going to use a label. Label is just like referring something, आप किसी चीज को रेफरेंस के में यूज करते हो तो वहां पे आप लेबल यूज करते हो, ठीक है। एंड size, close it, and then use expression is equal to curly bracket dollar underscore dot. Do you remember why we use underscore dollar underscore? To referring a current object. current object अभी इसमें क्या है हमारा फॉर्मेट टेबल, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे साइज और स्लैश 1 GB, ओके, देन क्लोज द ब्रैकेट ट्वाइस। दोबारा ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। चलिए अब आगे चलते हैं और एट द रेट यूज करते हैं हम लेबल। फिर से लेबल इस बार किसके लिए यूज करेंगे हम, हमने अगली बार साइज के लिए यूज किया था, इस बार हम यूज करेंगे फ्री स्पेस के लिए। तो कमांड बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे लेबल चूज करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा फ्री स्पेस, ठीक है। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या मेंशन था। डॉलर अंडरस्कोर फ्री स्पेस स्लैश 1 MB। So you can see, yeah, there's a no free space. That's strange. What is wrong in a calculation? चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है कि फ्री स्पेस में कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
एक छोटा सा फुल स्टॉप भी ना, या तो आप देख रहे हो कि फ्री स्पेस हमने एमबी में लिया है और साइज हमने जीबी में लिया है, तो इट्स 99 जीबी एंड 62,000 MB समथिंग इज अ फ्री स्पेस। और भी कुछ कर सकते हैं ना। चलिए एक काम करते हैं, इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन दूर करने के ना लेबल में एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यार ये ना हमको चाहिए, ये जो है ना ये डेटा ये है जीबी में, ठीक है, और ये जो है ना फ्री स्पेस ये है एमबी में। इट्स लुकिंग बेटर। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि साइज जो है वो 100 GB है, 99 GB है, और जो फ्री स्पेस है वो एमबी में है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट हियर, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड मूव व्हाट वी कैन डू मोर, ऑलवेज वी कैन डू मोर, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो वैसे ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, इसमें फॉर्मेट कवर कर लिया, हम कैसे कस्टम कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी कवर कर लिया। तो आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।